ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸਲਬਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੀ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਡੀ 33 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। 33 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ 33 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉनको क्यों हटाया? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ मुख्य सेवादार कोशिश नहीं। आपके प्रधान जैसे अभी बलजीत सिंह दादूवाल तक थे, आपसे पहले तक ये था, उनको क्यों हटाया गया, क्या कारण रहा और आज की मीटिंग इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा है, दादूवाल जी प्रधान नहीं, वो कार्यवाहक प्रधान थे। मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरा इस्तीफे का प्रोसीजर कानूनी तौर पे मेरा इस्तीफा सिर्फ हाउस के पास था। मेरा इस्तीफा डीसी के थ्रू एक में चुका, डीसी के थ्रू गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था। ना वो गवर्नर पास के गया ना डीसी साहब के पास गया। हमने काम चलाने के लिए अंदर बैठ के आपस में मेरी बीमार होने की वजह से उनको कार्यवाहक प्रधान चुना था। ये ठीक है कि उस समय इलेक्शन की भी स्थिति आ गई, हमारी सर्वसम्मति से सहमति ना बन पाई, इसलिए वो अपने तौर पर हमने इलेक्शन करवा लिया। मगर इलेक्शन के बाद यदि तो डीसी साहब उनको वोट चुकाते, जैसे कुरुक्षेत्र में 2014 में मुझे चुकाई गई थी, उसमें भी 41 मेंबरी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था और डीसी साहब ने जर्नल हाउस की मीटिंग बुला के मुझे प्रधानी की और सभी मेंबरों को वोट चुकाई थी। इसी प्रकार ना तो उनको डीसी साहब की वोट चुकाई गई ना मेरा इस्तीफा तो होगा। वो तो एक कार्यवाहक हमारे आपस में इंटरनल काम चलाने के लिए जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक के लिए उनको चुना गया था। आज फिर जनरल हाउस ने मुझे सेवा बख्शी है। मैं अपने इन सभी मेंबरों का और अरोड़ा साहब का विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद करता हूं और सारी हरियाणा की सिख संगत का भी जो है वो भी अरोड़ा साहब का धन्यवाद करेंगे। अगली जिम्मेवारी इनकी है, सीएम साहब से भी अपनी बात करेंगे, इनकी बातें होती रही हैं, सेंट्रल सरकार से भी करेंगे कि होम मिनिस्ट्री की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी जिम्मेवारी इन्होंने। इस मीटिंग में क्या सभी सदस्यों को बुलाया गया था? क्या दादूवाल जी को भी निमंत्रण था इस मीटिंग का? नहीं सर, इस तरह जी
ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਭਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 35 ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ से दोबारा वो चुकाई जानी। कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है। अपने आप मैं कही ना गड्डियाँ 5-4 रह के जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस तरह नहीं होता। आपने कहा कि उनको कार्यवाही प्रधान चुना गया था, हाँ जी। क्या अब उनको कार्यवाही प्रधान रखा गया है, उनको हटाया गया है, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया? उनको तो आज उनको हटा दिया गया जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया। अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये रोड़ा साहब ने सर जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संगत से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान। आज कितने मेंबर आए आपके? 33 मेंबरों के नाम बता सकते हैं कौन कौन आए? इस तरह जी मैं लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ सारे मेंबरों की लिस्ट दे देना वहाँ, और तुसी अपना वो फोटो खींच के। आज की मीटिंग में और कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? हाँ जी, कितने आज की मीटिंग में और कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? नहीं, पर आगे 1 अक्टूबर को हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग गुरुद्वारा छवीं पारसी जर्नल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाएगा। ये 2 फैसले दिए। और आज कितने मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है ना? 33 मेंबरों ने मुझे सर्वसम्मति ने किसी 5-4 मेंबरों में वीडियो का भेजी, क्योंकि एक कनाडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी, एक जयपुर थी, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है, और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो मान। अब जैसे आपको प्रधान चुना गया है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो उसको लागू करवाने के लिए अब आपकी क्या योजना रहेगी? अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए, और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हाँ इस तरह जी। दादूवाल साहब ने 10 मेंबरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है एग्जीक्यूटिव बॉडी। हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। प्रधान जी, एक सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, उनको कहाँ पे देखते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? कौन सी जी? गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी करके 10 नए सदस्य बनाए थे, वो ऐसा है जी, वो तो हमारी एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे। तो दादूवाल साहब के तरफ से भी कोई आया था इसमें डेलीगेशन, उनकी तरफ से भी कोई? नहीं, डेलीगेशन ऐसा है जी, वो मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। निमंत्रण दिया गया था? वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था ऑफिशियली उनको? वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी, तो हाउस की मीटिंग थी जैसे, क्या ऑफिशियली निमंत्रण नहीं दिया गया था सभी सदस्यों को? हाँ, इस तरह जी दादूवाल साहब ने एक दादूवाल से बिंगा स्वर्ण सिंह ने किया, धक्के नाल जबरदस्ती लोगों में प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान। ये जो नया फैसला आपने किया है आज की मीटिंग में सभा ने, इसके बारे में गवर्नमेंट को सूचित करने के लिए किससे मिलेंगे और कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो अरोड़ा साहब की जिम्मेवारी लाई है, इन्होंने दी सीएम साहब नाल गल हुई है, जल्दी ही ये अरोड़ा साहब बात करके ये अरोड़ा साहब आपकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी, कौन इसमें आप किसने हिस्सा लिया, कितने लोग थे, क्या निर्णय लिया गया इसमें? देखिए, इसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए, और कुछ लोगों ने जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे, जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज
निम साहब गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी कि आप प्रधान की नियुक्ति करो, क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह जिंडा जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह जिंडा जी की वजह से बनी है, जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमड़ाबाद जो एग्जेक्टिव मेंबर थे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो कि जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके। तो सीएम साहब से कब जो है मुलाकात की? आज सीएम साहब करनाल आ रहे हैं। हमारे यहाँ सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जैसे दादूवाल जी को नहीं बुलाया गया, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या कैसे ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, दादूवाल साहब जो हैं वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी। दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए। और क्या निर्णय हुआ इस बात को लेकर? हमने आज सर्वसम्मति से सर जगदीश सिंह जिंडा को प्रधान बना दिया और अगली जो मीटिंग है वो 1 तारीख को उत्तरा में होगी, जहाँ के हमारा हेड ऑफिस है। वहाँ पर हम एग्जेक्टिव बॉडी का चुनाव करेंगे, सर्वसम्मति में करेंगे और उसके बाद हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वो जो लीगल तौर पर प्रबंध है डीसी साहब की ड्यूटी लगेगी वो चुका देंगे और हम अपना काम शुरू। कुरुक्षेत्र में होगी, चीका में होगी सर मीटिंग? कुरुक्षेत्र में हासिल वहीं होगी और डीसी साहब भी वही करेंगे। तो आप मुख्यमंत्री से मिलोगे इसमें, तो इसमें कोई खास बात होगी आपस में? किस बात को लेके आप मुख्यमंत्री से मिलोगे? देखो, ये सारा जो काम है ना मुख्यमंत्री की और हरियाणा कमेटी में आपस में बहुत गहरा तालमेल से काम हुआ और हम उनसे हमेशा ही मिलते हैं। मौलवी साहब, आप सीनियर मेंबर और प्रधान भी रहे हैं। बलजीत सिंह दादूवाल जी को हटाने के क्या कारण समझते हैं? ऐसी क्या समस्या हुई जो उनको हटाया गया पद से? इधर देखिए, वो मैं सही आपको जवाब बताता हूँ कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है वो हरियाणा विधानसभा के एक्ट नंबर 22 और 2014 के तहत जी, तो उन्होंने हमारा एक एक्ट तैयार किया। दादूवाल जी ने पहले दिन से उस एक्ट को माना, जो एक्ट को नहीं मानता तो इन सब भाइयों ने फैसला कर दिया कि हम उसमें वो हमारा प्रधान नहीं है। आज तक जो जितनी देर तक रहा उसने जो काम किया, उसने जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई, उसने बजट नहीं बनवाया, उसने ऑर्डर नहीं करवाया और जो कुछ भी काम किया उसने ये जो पवित्र संस्था थी गुरुद्वारा साहिबान की, इसको उसने डेरा बना दिया और जो अपने मेंबर साहिबान थे उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया, जो बनता मान सत्कार है वो नहीं दिया। इस वजह से वो